نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ٹھیک ہے الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت وعلیکم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین و دنیا کے بہترین کام لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ بقرہ کا آغاز کیا اور اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کسی امت پہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے زیادہ انعامات دیے لیکن انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی، اور آج کی دو آیات ہمارے لیے مشل راہ بن سکتی ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے لفظی ترجمے کا۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً تم نے جان لیا الذی ان لوگوں کو نعتدوا جنہوں نے حد سے گزر گئے تھے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو تم بن جاؤ کونو قرادتاً بندر خاسئین ذلیل ہونے والے فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت لما ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا ان کے سامنے تھے اس دور کے لوگ، یعنی وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے تھے بعد میں آنے والے، یعنی وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ الحمدللہ ہماری دو آیات تھی، اس کے ہم روٹ ورڈ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ نعتدوا جو حد سے گزر کے، عین دال واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، سبتی ہفتے کے دن، سین باتا اس کا روٹ ورڈ ہے، کونو تم بن جاؤ کاف واؤ نون اس کا روٹ ورڈ ہے، قردۃً بندر کاف را دال اس کا روٹ ورڈ ہے، خاسئین ذلیل ہونے والے، خاسین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نکالن عبرت نون کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے یعنی کہ اس دور کے لوگ، یا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلفہا جو اس کے پیچھے تھے یعنی کہ بعد میں آنے والے قومیں، فا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، وموعظۃ نصیحت ہے، وا عین شوا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے روٹ ورڈ تھے، اب ہم اس کی مختصر سی تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن حد سے گزر گئے تھے ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن حد سے گزر گئے تھے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پہ توہین آمیز عذاب ہے۔ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن حد سے گزر گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا تفصیلی ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ اعراف میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک رو نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتی ہو جنہوں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ یعنی کہ اس ٹائم 3 گروہ بن گئے تھے۔ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھیں کہ ہفتے کے دن کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جو وہ روکتے تھے اور خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ ایک کیٹیگری وہ تھی جو خود تو نہیں کرتی تھی لیکن روکتی بھی نہیں تھے، برے کاموں سے روکتی بھی نہیں تھی۔ ایک کیٹیگری یہ وہ تھی کہ جو خود کرتی بھی تھی اور دوسروں کو بھی ملامت کرتی تھی، یعنی کہ اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ تو ان کی جو ہے آپس میں جو ڈائلاگ ہیں وہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں ہمیں۔ جب انہیں بلا دیا گیا تو انہوں نے نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کو لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو لوگ برائی سے روکتے ہیں، اللہ رب العزت کا کوئی عذاب کوئی قہر آ جائے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو برائی کو روکتے بھی ہیں اور اس کو خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کرنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں، مومنین کی نشانی ہے کہ وہ نہ خود وہ برا کام کرتے ہیں نہ کسی کو اس طرف جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جن کی فرض کرے کوئی صاحب اقتدار ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی کہ ان پہ سزا رد کرے، یعنی کہ ان کی سزا کر دے ان کے لیے کہ آپ لوگ اگر یہ کام کرو گے آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو اتنے کوڑے لگیں گے، یا اس ٹائم جو بھی سزا ہو اس دور کی، تو وہ اگر ان کے لیے سلیکٹ کر دی جائے تو وہ متقی لوگوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو بدترین عذاب نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اور وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو 2 کیٹیگری تھی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں یعنی کہ جو برائی کو کرتے تو نہیں تھے لیکن ان کے سامنے ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی تھی، وہ ان کو روک نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی عذاب میں یعنی کہ ان کو بھی شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں نے کو بھی پکڑ لیا آ کے جنہوں نے روکا نہیں تھا، لیکن خود نہیں کرتے تھے لیکن روکا نہیں تھا۔ یہاں پہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں، اگلا بندہ مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ ہم اپنا جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام ہے ہم اپنا پورا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں نکالا ہے، بہترین امت کو بنایا ہے، ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی کو روکیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کہیں بھی برائی ہوتی دیکھیں ہم اس کو فوراً روکیں، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ یا دل سے اس کو برا سمجھے۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ کوئی جہاں پہ لگا ہوا ہے لگا رہنے دے، ہمیں ضرورت نہیں ہے انٹرفیئر کرنے کی۔
तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है नेमतें हैं, लाजवाल नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबक का कानून ये था कि हफ्ते के दिन इबादत के लिए खास किया हुआ था। उस दिन दुनिया का कोई काम ना बंदा खुद कर सकता था, ना अपने मुलाजमों से करवा सकता था। जो कोई इस कानून को तोड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल था उस टाइम। यानी कि बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया। जब उनकी नाफरमानियां हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनको, वो उनके अंदर लालच और हवस इस कदर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कारोबार का वो सारा सिस्टम दिखा के और फिर कहा कि मैं देखता हूँ तुम में से कौन मुत्तकी है और कौन मुनाफिक है और कौन मुझसे डरने वाला है और कौन डरने वाला नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों ग्रोहों को जो पकड़ रहा था और साथ में दूसरा जो रोक नहीं रहा था, उन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब ने आ पकड़ा। बनी इसराइल ने सबत के मामले में क्या ज्यादती की थी? बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन इबादत करने की बजाय तिजारत की और उस दिन की हुर्मत को पामाल किया। यहूदियों का जो दिन होता है वो हफ्ते का दिन होता है, ईसाइयों का इतवार का दिन होता है, और यहूदियों का हफ्ते का दिन होता है, और मुसलमानों का जुम्मे का दिन इबादत का होता है। बनी इसराइल ने हद से तजावत किया। शिकार को उनके लिए हराम किया गया था, उन्होंने शिकार किया। सबत का कानून तोड़ने पर बनी इसराइल को क्या सजा मिली? उन्होंने अहद शिकनी की तो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनको बंदर बना दिया। जब इंसान जानवरों की तरह सोचता है तो फिर अल्लाह ताला उसको जानवर ही बना देता है। यानी कि यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को तोड़ेंगे, अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत की हद को तोड़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या करेगा? हमारी शक्लें जो है वो बदल डालेगा, जानवर जैसी बना देगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि किसी को देख के कोई गुनाह कर रहा हो या कुछ बुरी इल्लतों में पड़ा हो तो हम कहते हैं उसकी शक्ल में मनुसियत नजर आ रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो इंसान जो है बिगड़ा हुआ है, सरकश इंसान है। तो ये क्या होता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से उस इंसान पर एक कह ले के लानत बरस रही होती है कि उसकी शक्ल जो है वो इंसानों जैसी नहीं रहती। फिर इसके खिलाफ इंसान को किस सदा पे ले आता है? जब भी इंसान शरीयत से इनहिराफ करता है तो वो अपने आप को जानवरों की सतह पर ले आता है, जो किसी इखलाकी तबके की पाबंद नहीं। शरीयत के साथ ये खेल खेलने की से डरना चाहिए। अल्लाह ताला का कानून इसी हैवानियत जिल्लत में मुब्तला ना कर दे जिसमें यहूद अपने फेल की वजह से मुब्तला हुए। ईमान लाने के बाद बेहिसी की बीमारी कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला की याद से गाफिल होकर। ये बहुत अहम पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि इंसान ईमान तो रखता हो, मुसलमान तो कहलाए, लेकिन उसके अंदर बेहिसी हो, बीमारी हो बेहिसी वाली, तो वो कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की याद से गाफिल होकर, आखिरत को भुलाने से, यानी कि आखिरत के बारे में सोचना ही नहीं कि हमने मरना भी है, ज्यादा सवाल करने से, कि अभी फजूल में दीन के बारे में सवाल कर दे कि वो कैसे हुआ था, ऐसे कैसे हुआ था। कुरान को छोड़ के, इसके अहकामात को छोड़ के नई नई चीजें निकाल लेने के, फलां जो मामला था वो कैसे हुआ था, वो किसने किया था, उसके करने वाला कौन था, ऐसे सवाल करने से, तावील करने से, यानी कि अपने पास से चीजें घड़ लेने से, अपने पास से दलीलें लेने से, कि हम तो नमाज पढ़ना चाहते हैं, देखे ना हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं? घर में सौ काम है, सास है, नंदे हैं, मेहमानों का आना जाना है, ईद के दिन है, या कोई भी हम कहीं गए हैं, मॉल पे गए हैं, तो हम कहाँ पढ़ सकते हैं? ये क्या होता है? तदलील करना, अपने आप को डिफेंस करना कि हम जो है अल्लाह की तरफ तो है, हमारा दिल में ईमान तो है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हुज्जतें पेश करना, यानी कि उस चीज को किसी दूसरे एंगल से किसी के सामने पेश करना, कि हम तो इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि दीन के मामले में किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होती।
हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि दीन को हम किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। लोग अक्सर कहते हैं जो जहाँ पे है, जिस हाल में है, जिस फिरके में है, उसको रहने दो, उसको रोक टोक नहीं करो। ये क्या होता है, ये हुज्जत होती है ना कि हम अपने पास से ही यानी कि एक पैमाना सेट कर लें कि हमने जो है दीन के लिए इतना काम करना है, और हमारा जो है लिमिट ये है, हम इससे आगे नहीं बढ़ना। हमने अपने लिए नमाजें पढ़नी है, अपने लिए इबादत करनी है, हम अपने अपने अमाल को सेट करें, दूसरा भाड़ में जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। तो ये क्या है, ये हुज्जतें होती हैं कि हमने तो ये करना था, हमने वो करना था। बहस करने से, क्योंकि बहस जो होती है ना, फजूल बहस। फर्ज करें कोई भी इंसान है, आपको एक हदीस बयान कर रहा है कि इस हदीस के मायने मफहूम ये है, इस हदीस को हम फॉलो करेंगे तो हमें ये जो दुनिया की रस्म है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो उस पे एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है। कल मैं देख रही थी उस पे फेसबुक पे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बयान था उनका कि जो मुर्दे होती हैं उनसे हम किस तरह बात करें, हमारी कैसे बात कबूल हो सकती है। उनको नहलाया किसी गैर ने, उनको नहलाया जिंदों ने, उन्होंने कफन, वो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ लिखा था। उसके नीचे जो कमेंट थे ना, वो देख के इतना दिल दुखा, इतना दिल दुखा कि उन्होंने कुरान की आयत पढ़ पढ़ के, हदीस पढ़ पढ़ के आप लोगों को बताई है, उसके नीचे गाली गलोच और पता नहीं लोग क्या क्या वहां पे बोल रहे थे। अजीब सा मंजर था, वो लग ही रहा था कि ये दीनी पोस्ट है, बजाय इसके कि दीन की में अगर आपको यानी कि मुस्नद चीजें मिल रही हैं, कुरान की आयत मिल रही है, हदीस मिल रही है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस पे आंखें बंद करके दिल में मुकम्मल यकीन के साथ उस कुरानी आयत पे, उस हदीस पर अमल करें। ठीक है, ये हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हम पर हुज्जत मुकम्मल हो गई। यूं दिल सख्त हो जाते हैं, और सख्त दिल हो जाए तो आम इंसानी बातों की तरह अल्लाह ताला की बातों को भी इंसान सरकशी पर मबनी रवैया इख्तियार करने लगता है। यानी कि जब इंसान इस तरह की चीजों में पड़ जाता है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, दीन में इतनी सख्ती क्यों है, दीन में ये क्यों है, दीन में वो क्यों है, जब इंसान ये सोचने लग जाता है ना, तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। और उसकी जो दिल की सख्ती होती है ना, वो किसी के लिए नहीं होती, वो अपने लिए उसके आजाद को दावा दे रही होती है। और एक कोशिश करनी चाहिए, जब आपके पास कोई ऐसी चीज पेश कर रहा है जो कुरान और हदीस में मुकम्मल प्रूफ के साथ है, तो उस पर बहस नहीं करें, उस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म समझते हुए समियाना व अतवाना वाला मामला रखें कि हमने सुना और हमने अताअत की, यही फर्मा बरदारी है। देखें, अगर फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी चीज आई है, कोई कुरान की आयत है, आपने उस पे अमल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले आपकी पता नहीं जिंदगी की कौन सी मुश्किल आसान कर दे। कोई मसला, कोई मसाइल हो, आप उसमें घिरे हो, किसी आजमाइश में घिरे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप पे प्यार आए कि ये बंदा बगैर किसी दलील के, बगैर किसी तावील के, बगैर किसी बहस के अपने दुनियावी काम को इस वजह से छोड़ रहा है, दुनियावी मामलात को इस वजह से दूर कर रहा है अपनी जात से कि ये मेरे रब को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला को ये अमल बहुत ही पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे कि हम फौरन कुरान की आयत और अहादीस पे फौरन समिअना व अतअना कहने वाले बन जाए। आमीन। फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिईन, और हमने उन्हें कहा कि तुम जलील होने वाले बंदर बन जाओ। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कैसे बंदर बनाया? बनी इसराइल ने ये कहा गया था कि हफ्ते के दिन हुर्मत बरकरार रखें, उस रोज मछलियों का शिकार ना करो। हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार की ये तदबीर उनके जहन में आई कि एक गड़ा खोदे, उनमें जाल और कांटे डाल दिए जाए, हफ्ते के दिन मछलियां जालों में फंस जाएंगी और इतवार वाले दिन पकड़ ली जाएंगी। उन्होंने इस ताबीर
तदबीर पर अमल किया, बनी इसराइल की हालिया साजी पर, इस गुनाह अजीम पर अल्लाह ताला ने उनको उन अल्लाह ताला का गजब उन पर वाजिब कर दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें हकीर और जलील बंदर बना दिया। देखें, उन्होंने अपनी तरफ से एक लाहे अमल तैयार किया कि अल्लाह ताला ने तो हमें हफ्ते वाले दिन रोका है ना, कि हफ्ते वाले दिन हमने कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, हम हफ्ते वाले दिन को छोड़ के हफ्ते वाले दिन हम उन मछलियों को जाल में बंद कर लेते हैं। लेकिन हम पकड़ेंगे किस दिन? अतवार वाले दिन। अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला दिलों के भेद जानने वाला है। अल्लाह ताला ने इस वजह से नहीं पकड़ा कि उन्होंने अतवार वाले दिन क्यों मछलियां पकड़ी। अल्लाह ताला ने उनकी नीयत पे उनको अजाब दिया कि उन लोगों की नीयत जो थी अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाली नहीं थी। वो अल्लाह ताला के अहकामात को अगर मानते तो वो छोड़ देते। कहते हमारी किस्मत में जो रिज़्क होगा हमें इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा, हम अतवार वाले दिन डबल मेहनत कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत डालेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी तरफ से एक जो होता है अपने माइंड को अल्लाह ताला की अहकामात पे फोकियत दी और अपने जो है यानी कि उसको सारा डिजाइन किया, एक सेटअप बनाया उन्होंने। और उस सेटअप के हिसाब से उन्होंने ये शो करवाया कि हम अल्लाह ताला के हुक्म जो मान रहे हैं, लेकिन हम जो है ये मछलियां जो है कारोबार जो है इसको भी नुकसान हम पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने दरमियान का रास्ता जो है वो अपनाने की कोशिश की और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बंदर बना दिया, जलील और हकीर बंदर बना दिया। शरीयत के हामिल करदा ग्रोह की गुमराही की क्या सूरत है? शरीयत के हामिल शरीयत के हामिल ग्रोह की गुमराही की क्या सूरत है? शरीयत के हामिल ग्रोह की एक सूरत ये होती है कि वो अमूमन उसके खिलाफ चले और तावील के जरिए ये जाहिर करे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर है। जैसे यहूद को ये हुक्म दिया गया था कि सब्बत के दिन इबादत के लिए मखसूस रखे, उन उन दिनों हफ्ते वाला दिन यानी कि दुनियावी काम ना करें, मगर उन्होंने उस दिन को कारोबार के लिए किया और तावील से ये साबित किया कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर हैं। फजअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और हमने उसको और उनके दौर के लोगों को और बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया। फजअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, और हमने उनको उस दौर के आने वाले लोगों के लिए इबरत बना दिया। इसकी क्या वजाहत है? फजअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उस जमाने के कौमों तक जिन्हों पे ये खबर पहुंची उनके लिए इबरत बना दिया। यानी कि उस टाइम जो मौजूद थे अल्लाह ताला ने उनको अलर्ट कर दिया, उनके लिए उन लोगों को जिनको बंदर बनाया था उनके लिए इबरत बना दिया। जहां जहां वो जा रहे थे वो इबरत का निशान बन के लोगों के सामने उनको पता चल रहा था कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी के जुमर में आए हैं, अल्लाह ताला का अजाब इन पर पड़ा है। और मा खल्फहा, और उन कौमों के लिए भी इबरत बना दिया जो उसके बाद आने वाली हैं। कौन सी कौमें? यानी कि हम लोगों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबरत कैसे बनाया कि अल्लाह ताला के हम जब अहकामात नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला हमारी शक्लें बदलने पे भी कादर है, हमारे जात को बदलने पे। हमें अशरफुल मखलूकात अगर उसने बनाया है तो हमें वो हकीर भी कर सकता है, जलील भी कर सकता है, और बंदर जैसी जो है घटिया जानवर ऐसा भी बना सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें हर उस अमल से बचा के रखे जो उसकी नाफरमानी के जुमर में आता है। आमीन। इबरत से क्या मुराद है? माजी के किसी वाक़े में से अपनी जिंदगी से अच्छा सबक निकालना। जिन लोगों ने सब्बत के कानून को इलाही के खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। उनको उस दौर के लोगों के और बाद में आने वालों के लिए कैसे इबरत बनाया। अल्लाह ताला की नाफरमानी करके बंदर बन जाने वालों को लोगों ने देखा, उनके उनके और उनके लिए ये आंखों देखा वाकया और गवाही थी उस दौर के लोगों के। और बाकी जो बाद में आने वाले थे अगरचा उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के इस वाकये को इबरत बनाया कि नाफरमानी करने वाले की शक्लें बस हो सकती हैं
अल्लाह ताला के वजूद, इंसान के वजूद पर असल अख्तियार अल्लाह ताला का है। जो चाहता है कर सकता है, इंसान जो चाहता है वो नहीं कर सकता। उसे अपने किए पर सजा मिलेगी। अल्लाह ताला इस वाक़ये से उन पर हुज्जत कायम कर दी ताकि गुनाहों से वो बाज आ जाए। मौइज़तल लिलमुत्तकीन, अल्लाह ताला ने डरने वालों के लिए नसीहत बना दी। इसकी क्या वजाहत है? मोइजा का मादा जो है, यानी कि रूट वर्ड जो इसका है वाह आइन शुआ है। वो इस ऐसी नसीहत को कहते हैं जो दिल को पिघला दे। मोइजतन यानी कि दिल को पिघलाने वाली नसीहत। अल्लाह ताला ने इस वाक्य को सबके लिए इबरत बना दिया ताकि वो गुनाहों से बाज आ जाए। मगर नसीहत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, क्योंकि वही नसीहत से फायदा उठाते हैं। आम लोगों के लिए इबरत बनते हैं और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बनते हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के से जो लोग डर जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको चुन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रब बंदों में चुन ले, हमें ऐसे कामों करने से बाज रखे जो उसकी नाफरमानी के हैं, और अल्लाह ताला हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।